अभी मैं आ रहा हूँ, जस्ट 2 मिनट में, 1 मिनट में। या अभी अश्विन भाई नहीं आए हैं। ओके, કેમ છો મામા? જય જીનેન્દ્ર। જીનેન્દ્ર કેમ છો? સંભળાય છે બરોબર? હા, તમારો અવાજ બરાબર આવે છે। હું છે ને તમારો વિડિયો ચાલુ કરું છું। ઓકે ઓકે ઓકે, તમે ક્લિક કરો વિડિયોમાં। I'm good. Start my video. Okay, can you? Are you? Okay. ઓકે, બધાના વિડિયો ચાલુ છે ને? આપણે Yep. એ અમારી સાથે છે ને, આપણી સાથે આજે પેલા તેજસ કુમાર ચિકાગો થી રહેશે, Oh, એટલે સરસ સરસ. એ આપણને કઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે ને તો હેલ્પ કરશે। I know. જય જીનેન્દ્ર, તેજસભાઈ। જય જીનેન્દ્ર, કેમ છો? મજામાં છો? તમે સુખ સાતામાં છો? બસ બિલકુલ બરોબર। અરે તમે તો અમને જે સરસ કરી દીધું છે આખું સેટઅપ। ના ના ના, અમે કઈ નથી। આ તો જે ચાલે છે આ લોકો એ બાને કરે, આપણે શું, અમે ટેકનોલોજી એટ બેસ્ટ। I know, but it is good to do that. Yeah. ઓકે, હવે અશ્વિનભાઈ, હા બોલો। જો અત્યારે છે ને આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં હું તમને સ્પોટલાઇટ વિડીયોમાં મૂકીશ, એટલે જો તમારામાં ઓ સંભળાય છે? એક મિનિટ હું હેડસેટ ભરાવી દઉં। હા હા બોલો હવે। હા, તમે બોલો ત્યારે હેડસેટ નો આપણે જ્યારે બોલો ત્યારે હેડસેટ નો પહેરતા, ઓ ઓકે। પેલું સારું દેખાશે એમને। અચ્છા અચ્છા ઓકે। ઓકે, એટલે અત્યારે જો તમારામાં આપણે રાઈટ સાઈડે ઉપર આવ્યું હશે કે તમે આપણે સ્પોટલાઇટ કે એવું કઈ આવેલું છે? ના, મારામાં તો 3 ના 4 નામ છે એટલે જ છે। નહીં, પણ આપણે તમારામાં યુ આર ઇન ધ સ્પોટલાઇટ કે એવું કઈ જ નથી કશે? મારામાં મામા એમનામાં સ્પોટલાઇટ નહીં તો પણ વાંધો નહીં, એઝ લોંગ એઝ તમે કર્યું હશે ને। હમણાં મને એમનું ફેસ દેખાય છે, અશ્વિનભાઈ નું, બધા બોલતા હોય ત્યારે પણ, એટલે હી ઇઝ ઇન અ સ્પોટલાઇટ, ડોન્ટ વરી। ઓકે ઓકે, એટલે જો સ્ટાર્ટિંગમાં છે ને હું ખાલી એમ 2 વાક્ય બોલા કે આપણું સેશન ચાલુ થાય છે અને અશ્વિનભાઈ ગોને સ્ટાર્ટ ધ સેશન, અને પછી તમે ચાલુ કરજો। ઓકે, જય જીનેન્દ્ર, નિર્મલજી। Yeah. જય જીનેન્દ્ર, થેન્ક યુ। ઓકે, Nirmalbhai, once Ashwinbhai finished, then at the end Ashwinbhai said that now Nirmalbhai going to start. Yes. Then I'm going to put you on the spotlight, so everybody will see your face, the big. Okay. Wonderful. Okay. Then when you complete, okay, when you done, okay, then you just gonna say that Ashwinbhai going to say something. At that time I will put Ashwinbhai back in the spotlight. Okay. Okay. And then at the end, you're gonna do the Manglik, and then we will. I will say that this will be our session. And so Nirmalji, what I will do once Harshadbhai starts at 11 o'clock or 11:05, I will introduce you, and then you take it over.
and around 12:05, I will, in between, say, after your two stavans, then I would say something for a minute. And then after that, you say your Manglik. Perfect, perfect. So I finished everything, and then then you come on, and then after you finish, I'll just do the Mangalam Chattari Mangalam. Barabar. ठीक है, बिल्कुल 100% ठीक है. And I- Arshad I'll keep change the spotlight video from my side. yeah, you be the operator in that case. Okay. Now, Harshad Bhai and Ashwin Bhai, one thing, I think we want to do something, talk about this virus going on. So how our dharmas say what we can do. And then second thing, I'd love to, if you want, we can talk about this chakra, how this chakra, Aradhana Bhagwan, Tirthankar Bhagwan, has soothed the chakras and the whole body, and then also how the graha, it affects the graha. If you want, I can do that, or we can do some other time. No, let us do the chakra some other time. Some other time, perfect. In your speech, include how this Bhaktama Stotra and other things are helping on this COVID-19 and how it keeps us safe and all that. And then that would be, I think, good enough for this first lecture of yours. Yeah, at the end of the lecture, I'll just go after the Karastak, go over whatever philosophy says, how do we deal with these things. So we'll talk about that. Yeah. And then we'll start the bhakti. And Right. after finish the bhakti, you take it over, and then we finish with Chattari Mangalam. Sure. Good. Perfect. And everybody's video will be off except the Ashwin Bhai and Nirmal Bhai. Okay. Throughout. And all other one, including me, my video would be off too. So Audio ke video? Audio. Video and audio. Oh, okay. Okay. I'll turn on the audio whenever I have to speak in the beginning, but not Right. the video. Okay. Okay? Yeah, sounds good. Everything. Any question anybody have? No, I do not have anything. I think this is a good start, and I think Nirmalji actually personally also that you're coming over and doing this program, and it's a new start for us. We are doing it for the second time actually. We did once before in connection with the Hindu temple here, and they did the stavans, but this is the full-fledged program you are giving, Nirmalji. So that will be really thankful to you and very nice of you. सर देखिए अश्विन भाई ये भगवान की आराधना है, तो हम सब इसी बोट में हैं साथ में, and we are together in this boat, and भगवान की आराधना में कुछ ऊंचा नीचे नहीं है. तो भगवान की आराधना जो भी करते हैं वही कम है, और we do that from that point of view. No, I appreciate that. Yes. Okay. અશ્વિન ભાઈ તમારે હેડફોન ની જરૂર ખરી કે એમને નથી? મારે બોલાય ને મારે તો I can take it off. લો ના હવે સંભળાય છે બધું? એક મિનિટ. યા કાઢ નાખ્યું. સંભળાય છે? હા, તમારું તો બરાબર સંભળાય છે. મને સંભળાય છે બરોબર. હા, કાઢ નાખ્યું હેડફોન. આજે વધારે નેચરલ લાગે. Okay. And one more thing, that as you said 12:05, hopefully we'll do that, and in case we extend for another 5 minutes because certain point try to express it, then it might that is fine. Five more minutes. That is fine. I just say 12:05 knowingly that we may extend it. Okay. It might be shortened too. I keep that cushion on my hand. Yes, that's right. And it might be shortened also. We'll see how things go. No, you're fine. Yeah. I'm okay with that. Yeah. So whatever time we give in the prayer of Bhagwan is always less. Oh, that is very true. That is very true. So we will do, and we will do together and see how things going to go. Right. God bless everybody. Thank you so much. Yeah. Just wait for another 2-3 minutes, and then Arshad Bhai can start it. Okay. Oh, Arshad Bhai first come in? Arshad Bhai is already there, na? Yes. Okay, then he's going to tell me. And he's going to let everybody accept on that and let them enter. Okay, got it. Yeah. Perfect. ઓકે. અશ્વિનભાઈ અત્યારે તો આપણે 4 જણા આવેલા છે,
બરોબર આપણા we know the Indian standard time, but we want to start it on time. Yeah. Yeah. હર્ષદમાં એડ કરવા હોય તો હવે એડ કરી દો એટલે 1-2 મિનિટ જરાક સેટલ થઈ જાય બધા પોતપોતાની Right, રીતે એટલે હવે એટલે 11:05 નું કરી દેજો તમે શરૂ હર્ષદભાઈ. હા Yeah. That's હું the 11:05 કરું ને બધું સ્ટાર્ટ. Yeah, 11:05 આપણે શરૂ કરી દેજો. Then as Yeah. I will speak about introduction of Nirmalji and everything, and we'll go from there. ઓકે તો તેજસ કુમાર અત્યારે નહીં કરું કારણ કે The reason why કે તમે આપણે કઈ ડિસ્કસ કરતા એ લોકોને બધું સંભળાય. હા પણ 11 વાગ્યાનો ટાઈમ આપ્યો છે ને લોકો એમ ન થાય કે આ શું હા. થયું અમને હજી ચાલુ નથી થયું એટલે કદાચ એ ક્વેશ્ચન ન ઉભો થાય ભલે એ લોકો મોડા જોઈએ છે પણ આપણે Okay, આપણી રીતે કરી ચાલુ દ્યો, કરીએ તો ચાલો, વધારે yeah. સારું લાગે મને Yeah, 10. વધારે હલો appropriate લાગે. 10:59 છે 11 o'clock. Yeah, 2 મિનિટમાં કરી દો, વાંધો નહીં. બીજું કઈ તેજસ કુમાર કઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન બીજું કઈ આપવાની? ના ના બધું બરાબર છે આઈ થિંક તમે સ્પોટલાઇટ ઇઝ ધ મેઇન મેનેજમેન્ટ ને પેલું જે છે અને આઈ થિંક બીજા બધા તો મ્યુટ હશે એટલે સારું પડશે અને which is fine. અને નિર્મલજીને જય જીનેન્દ્ર નિર્મલજી. Thank you. જય જીનેન્દ્ર. અને એ તેજસ કુમાર પેલું એ જોઈ લઉં ને મેં બાબા કર્યું છે ને હવે ખાલી મારે પેલું એનેબલ વેઇટિંગ રૂમ જ કરવાનું ને. હા એ જ કાઢવાનું રાઈટ. ઓકે પ્રોગ્રામ બધો સેટઅપ ચાલો તો પછી હું બધાને એડમિટ કરું છું હવે. ઓકે કરી દો. યા હા. Okay, we're going to start in about 2 or 3 minutes. So, Yeah, you go and admit the people and then we will yeah, start. in 2 I minutes. already did. Yeah. Yeah, લીના આવી ગઈ છે. કલ્પના Okay.
Okay, we'll start at 10:05. I'm gonna put some stuti. So for 1 minute, and then we'll start. Okay, Jai Jinendra, we are going to start our session, and Ashwin Bhai going to start Hello. the session. Jai Jinendra, everybody, and thank you all for coming in and joining us. This is the first time in Jain Center because of all these things going on, COVID and coronavirus and all that thing. We are able to do this virtual presentation, and we never did this before. We did last time was with a Hindu temple, but this is exclusively for Jain Center. We are doing it, and I would like to invite Nirmal Bhai Doshi, Nirmalji, uh, who is very well known to our Jain community in United States and Canada for so many years. He is there even when we opened our temple. So he is actually a coordinator of Jaina Scholars Program. In the past, he used to manage all the scholars to our center in all over the country. Uh, he is a very learned man. He is actually a philosopher. He did his philosophy from Banaras Hindu University. And since then, he has been working as a Jaina coordinator. He has been awarded Jain Visharad title. Then he has conducted Jain Unity seminars to unite all Jains in Jaina convention. Uh, Year long, he has done a Bhaktamba Stotras puja group for one whole year. So he is a very, very learned scholar, and we are so happy to have him here today and present his program. And so he is going to start with Bhaktamba Stotra. He's going to explain, as I said, that he's going to give some detailed explanation of Bhaktamba Stotra, some of the stotras, not all of them, and how it affects our life. And other than that, then he is going to take us to the journey from Shravak to Arihant, how we all can do it. So not taking too long of a time, I will invite Nirmalji. Please take it over. Nirmalji. एक ज मिनिट, हाँ. Yeah. Nirmal Bhai, can you unmute your audio? निर्मल जी आप अनम्यूट होंगे, आपको मैंने स्पॉटलाइट में रखा है. You should be all set. Can you speak, Nirmal ji? Okay. Yes, you are can fine. hear you. Hello. Perfect. Hello, Judge and everyone. We'll start from Mangalacharan. Then after Mangalacharan, we'll go over the
Bhaktamar Sutra 1, 2, 7, 14, 33, 35, and 47. That is to help out against the calamities and negativity of the virus, followed by 3 Gatha from Bhaktamar Sutra 6, 16, and 17. That is supposed to enhance your memory. For the children, they can do good in school, and everyone can do that for their own benefit to increase the memory. Then we go over the 3 Gatha 8, 17, and 45. It's supposed to help people who are getting sick to help out in good health and remove the diseases. Followed by, we'll go over what's the way, how do the Shravak can go over towards the direction of Arind Bhagwan, and how do we get it over there? And we especially will concentrate on Avashyak Parihani, which is out of 16 ways, this is the 14th Avashyak Parihani, what is every Shravak should be doing every day in their life, every day. So we go over in detail on Avashyak Parihani, followed by 3 stavans. 2 of them are based on classical raga, but is actually a pure stavan for Bhagwan, and then followed by Om Mangalam. Ashwin Bhai will take it over from there, and then we'll finish with Chattari Mangalam at the end. Jai Jinet. So start with Mangalacharan. Om Rim Namo Arihantanam. Om Rim Namo Siddharanam. Om Rim Namo Ayariyanam. Om Rim Namo Vajjayanam. Namo Loe Savasahunam. Eso Panchanamukaro Savapavapanasano Mangalanam Chasavesim Padmam Havai Mangalam. Mangalam Bhagavan Viro Mangalam Gautam Prabhu. Mangalam Bhagavan Viro Mangalam Gautam Gani. Mangalam Stuli Bhadrajo. Mangalam Kunda Kundajo. Mangalam Namo Jinam. Jena Dharma Astu Mangalam. Bhaktamar ki Gatha 1, 2, 7, 14, 33, 35, and 47. We will recite it. So whosoever have Bhaktamar Gatha with them, they can open them up and they can read along with me. Bhaktamar Pranatmoli Mani Pravana Mudyotakam Dalita Papatamo Vitanam Samyak Pranam Pada Yugam Yugada Balam Banam Bhavajale Patatam Jananam Yasanstutah Sakala Vagmay Tattva Bodha Durbhut Buddhi Patbhi Suralokanathe Tote Jagat
चित्त हरे रुदारे तोषे किलाहं पितं प्रथमं दिनेन्द्रम् संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापक्षणाक्षयमुपेति शरीर भाजाम् आक्रांत लोक मलिनीलम शेषमाशु सूर्यांश भिन्नमिव शार्वर मंदकारम संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापा शुभ्रा गुणास्ति भुवनव तब लंघयन्ति ये संस्थिताश्च जगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम् मंदार सुंदर नमेर सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा रंधोद बिंद शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवः पतते वचसाम ततिर्वा स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग श्रेष्ठः सधर्म तत्व कथनैक पटुस्ति लोक्यः दिव्याधनिर्भवति ते विदुषाद सत्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्यः मत्वद्विपेन्द्र मृगराज दवान लाहि संग्राम वारिधि महोदर बंदनोत्तम तस्याश्रुनाश्रम पयाति भयं विएव यस्तावकं तिमं मतिमान दीते। इसके पश्चात आफ्टर दैट we'll do 3 gathas that is supposed to be very well known for helping the memory. For people who feel that they're forgetting, and the children were studying in the school, they can help getting their memory and getting sharpness. You're supposed to do that, but has to be done with tremendous respect to Adinath Swami Bhagwan, Tirthankar Swami Bhagwan. We recite Gatha number 6, 16 and 17. अल्पश्रुतं सुततां परिहासधामा सभक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मान् यत् कोकिलः किल मधो मधुरं विरोति तच्छामृचारुकलिका निकरेक हेतु निर्धूवर्ति पवर्जित तेलपूरः कृतं जगत्रिमदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरिता चलिता चलानां दीपो परस्मसिनाथ जगत् प्रकाशः नास्तं कदाचित् पयासि न राहुगम्यः स्पष्टी करोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाभोधरोधर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्र लोके. That lastly we go over the Gatha number 8, 17 and 45 supposed to heal and disease control. That's the Gatha number 8, 17 and 45. Matveti nath tab sanstavanmayeda marabhyate tanudaya pitav prabhavat हेतो हर्ष्यति सतान्नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननु बिन्दुः नास्तं कदाचित् पयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोधर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके उद्भूत भीषण जलोधर भार भग्नः सोष्टादशामुपगता शिव जीवताशा तदाव पंकज रजो मृत देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा. After that we're going to go, as we talked in the beginning, we go over विश्लेषण करेंगे पहले 2 गाथा का. तो ये भक्तामृत की पहली 2 गाथाएं हैं. उसके बाद भक्तामृत के बारे में हम कुछ कहेंगे. भक्तामृत स्तोत्र
और तत्वासूत्र, दो जो मेजर ग्रंथ हैं और जो रचना की हुई है वो दोनों संस्कृत के अंदर है। बाकी नौकार मंत्र और बहुत सारे जो अपने मंत्र और विद्या है वो सब प्राकृत भाषा में। जैन धर्म के मोस्टली रिलीजन, ऑल दिस ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर्स आर इन प्राकृत भाषा, बट दिस टू आर इन संस्कृत। हर एक श्रावक को भक्तामर, नौका मंत्र, तत्वास्तुत तीनों जहां तक हो सके कंठस्थ करना चाहिए। और ये भक्तामर गाथा आचार्य श्री मानतुंग जी या मानतुंग सूरी जी ने, मानतु स्वामी या मानतुंग सूरी जी द्वारा रचित 7th सेंचुरी में बनाई है। 7th सेंचुरी अप्रोक्सीमेटली अबाउट 1500 years बिफोर। और इतनी सुंदर बनाई है कि नथिंग कैन कम क्लोज टू इट, नॉट हियर बट एनीथिंग इन द वर्ल्ड। क्योंकि मैं भारतीय विद्याभवन में गया था, वहां पर they use this Bhaktamar as a textbook in Sanskrit classes. तो इस वन ऑफ दिस अद्वितीय ब्यूटीफुल चमत्कारिक स्तोत्र है। ये पूरा जो गाथाओं का जो संग्रह है, वो कलेक्शन इज इन राग वसंत तेलिका। जैसे होता है ना, सोरठा होता है, दोहा होते, चौपाई होती, उस जमाने में ये अलग अलग राग थे। वसंत तेलिका, वसंत तेलिका की खास बात यह है कि उसमें 7 दीर्घ स्वर और 7 शॉर्ट स्वर होते हैं। जैसे कि अ और आ इज दीर्घ, अ इज शॉर्ट। तो 7 हर एक लाइन के अंदर 7 दीर्घ और 7 शॉर्ट शब्द हैं, 7 शॉर्ट मात्राएं। तो हर एक लाइन के अंदर, और पूरा श्लोक जो है उसमें हर एक श्लोक के अंदर, for all these gathas, 48 gathas में एक वर्ड है म न त र, 4 अक्षर म न त र हर एक के अंदर है। इसका मतलब क्या है कि गाथा जो है वो मंत्रमय है। कोई भी गाथा आप पढ़िएगा विथ रिस्पेक्ट, विथ ट्रेमेंडस आदर के साथ में भगवान की आराधना करेंगे तो बहुत आदर से करेंगे, क्योंकि मंत्र है, वो खुद ही मंत्र है। तो दैट्स ब्यूटीफुल थिंग। दूसरी चीज क्या है कि ये जो फर्स्ट गाथा है भक्तावर में, वो दोनों का पूरे गाथा का 48 गाथा का मंगलाचरण है। फर्स्ट गाथा और मंगलाचरण, उसको कहते हैं 2 श्लोक की गाथा का जो मंगलाचरण होता है उसको बोलते हैं युग्म। अगर 3 श्लोक के मंगलाचरण हो तो उसको बोलते हैं विशेषक। 4 श्लोक का गाथा हो इसका मंगलाचरण अगर 4 गाथा में किया तो उसको बोलते हैं कलाम। वो 5 6 का होता है उसको कुलक बोलते हैं। तो मंगलाचरण से जैसे आप जानते हैं, एज यू नो, कि हर एक चीज, हर एक जो हम करते हैं उसको मंगलाचरण से ही चालू करते हैं। So that's the beauty of the Tattva Sutra. So we go over the Gatha 1 and 2. एक बार की बात है कि एक पिता ने बोला अपने बच्चों को कि जाओ जंगल से जाकर के वो लकड़ी ले आओ। तो दे गो आउट इन द जंगल एंड ब्रिंग गठरी भर के लकड़ी की। Then his father tells him, you know, just break them. So they all try to break it, but they are not able to break it. Then father says, okay, open up the guttery, open up the binding, and then break it. And they are able to break and use this. उसी तरह से भक्तामर, संस्कृत में जो भक्तामर लिखा है उसको अगर समझना चाहेंगे तो उसके वर्ड को ब्रेक करना होगा। उसको 2 शब्द आते हैं संस्कृत में, एक कहते हैं संधि और दूसरा समास। समास में जॉइनिंग 2 वर्ड्स, जैसे राम दास, यह समास हुआ, जॉइन राम एंड दास, उसका नाम रामदास हुआ। भक्तामर, भक्त प्लस अमर, if you join together then becomes भक्तामर। if you break it तो भक्त अमर हो गया। इस तरह से अगर संधि को ब्रेक करेंगे तो पूरी भक्तामर का जो श्लोक है उसका अपने आप ही मीनिंग निकल जाएगा। आप सोचते हैं कि भक्तामर इतना हार्ड है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। अगर उसका विश्लेषण करेंगे, ओपन अप ऑल द संधि, तो इट बिकम्स अपने आप ही बिकम्स ऑटोमेटिकली क्लियर। लेट अस गो ओवर द फर्स्ट गाथा
भक्तामर प्रणत मौलि मणिप्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य पाद युगम युगादा बालम बनम भव जले पतताम जनानाम। तो चीज और है कि गाथा संस्कृत में क्या है कि कोई भी वर्ड है in the whole 4 lines, it can be connected with the first line without putting it together. So same thing on the third line, उसका मीनिंग फर्स्ट लाइन में भी ला सकते हो ऑटोमेटिकली। और दूसरी चीज क्या है संस्कृत में कि विसर्ग बोलते हैं, इसके 2 मिंडी होती है ना बाद में, चित्त हरे रुदारे है, दारे के बाद 2 मिंडियां हैं, तो 2 मिंडी जो है उसको बोलते हैं विसर्ग, मीन्स दैट यू मेक ए स्टॉप। जैसे आप ड्राइव करते हो तो स्टॉप आता है ना 8 का स्टॉप साइन का, इफ यू डोंट स्टॉप यू गेट ए टिकट। सो ये स्टॉप पे रुकने का है, जैसे वह सबस्त 2 मंत्र में, तो जहां भी 2 मिनट हो वहां पे यू गिव ए लिटिल प्लॉज जस्ट लाइक ए फुल स्टॉप। तो 2 चीज ख्याल रखने का है। भक्त अमर प्रणत, भक्त देवता जो है, अमर मतलब देवता, देवता जो भक्त देवता, प्रणत मतलब झुकते हैं, मौली मणि प्रभाणा, उनका मुकुट में जो मणि होती है वो चमक जाती है जब भगवान के दर्शन करते हैं। प्रभाणा मुद्योतकम, और जो उसकी कांति है मणि की कांति वो चमक उठती है। दलित पाप समोवितानम, दलित मतलब डिस्ट्रॉइंग, तो भगवान आपके दर्शन से पाप तमोवितानम, सब जगह जो पाप फैला हुआ है वो नष्ट हो जाता है। सम्यक प्रणाम, किससे? सम्यक प्रणाम, लेकिन आदर के साथ करने का भगवान को प्रणाम, कंप्लीट जेन्युइनली भगवान की आराधना की जाती है। जैसे मेरा भाई है, कंप्लीट आराधना, कंप्लीट डिवोशन करेंगे, जिन पाद, भगवान के दोनों चरणों को प्रणाम करते हुए, तो सब पाप का नाश हो सकता है। युगम युगादा, युगादा मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। आपको पता है ना, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पंचम काल, छठा काल, तो भगवान धर्म चला है चौथे काल में, बिगिनिंग में, तो तब से ही बालम बनम, आलम्बन बने आप, इसको वर्ड ब्रेक के, एक बालम्बन को वर्ड ब्रेक करेंगे तो आलम्बन, भगवान आप आलम्बन हैं। कब से? जब से कि यह युग चला है तब से, भव जले, डूबते हुए, पतताम जनानाम, जो जीव हैं, वो गिरते हुए जीव हैं, उनका आप आलम्बन हैं, आपने डायरेक्शन दिया है। उन सबको तो दिया ही है, लेकिन अभी हम जो पंचम काल में जीव हैं हमको भी दिया है, और आगे आने वाले जब तक हो सकेगा वहां तक आपकी वाणी सबके हृदय में बसती रहेगी। तो भगवान आपको सम्यक प्रणम है, भगवान आपको सम्यक प्रणम। दूसरी गाथा है, यह संस्तुत सकल वाग्मय तत्वबोधा, दुर्बुद्ध बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथ, सोते जगत चित्त हरे रुदारे, तोषे किला हम पितम प्रथमम जिनेन्द्रम। दूसरी गाथा में आप देखिए क्या होता है, यह मतलब इस संस्तुत मतलब आपकी स्तुति की हुई है, ऑलरेडी स्तुत है। किसने स्तुति की? भगवान की। भगवान इस धरती पर आए, पहली बार जन्म लिया, तो स्वधर्म देव शक्र ने आकर के और आपकी पूजा की, आपका गुणगान किया। नमोत्थरम, आपको पता है नमोत्थरम, नमोत्थरम का किया, नमोत्थरम, और उससे सारे ज्ञान के साथ में सकल वाग्मय, वाग्मय मतलब पूरा जो भगवान ने बोला है, वाग्मय मीन्स वाक्मय, भगवान ने जो बोला, वाक मतलब बोलना, भगवान ने जो बोला है उसको ग्रंथ में गणधन रचित किया है, और उस सब ग्रंथ को नॉलेज के साथ में पटु भी सुरलोकनाथ, सुरलोकनाथ मतलब इंद्र ने, सौधर्म इंद्र ने, जो उसकी जो नॉलेज, उसकी जो बुद्धि प्राप्त हुई, उस नॉलेज के साथ में त्रिजगत चित्त हर, तीनों जगत के हरने वाले और महान
शब्दों के साथ में आपका गुणगान किया है। उद्भूत बुद्धि पट भी सुरलोक नाते सोते त्रिजगत, तीनों जगत के तीन जगत के जीव हैं इस पृथ्वी के ऊपर, देवता आकाश में जो भी जीव हैं सबका चित्त हर लिया है। ऐसे सुंदर शब्दों से भगवान इंद्र ने आपकी याचना की है। स्तोषे किला हम्पी, मैं भी, स्तोषे में से मैं भी, किला हम्पी मतलब निश्चय ही, हम अपि, अहम अपि, अहम मतलब मैं, अपि मतलब भी, मैं भी प्रथम जिनेंद्र आपकी आराधना करूंगा, आपका स्तवन गाऊंगा। यह पहली बार देखिएगा कि प्रथम जिनेंद्र, यह दिस इज द ओनली प्लेस ये मेंशन किया है कि ये प्रथम जिनेंद्र मतलब आदिनाथ स्वामी की आराधना है, इसको आदिनाथ ग्रंथ भी बोलते हैं। तो this is the only place out of all the gathas. So this is actually, you can just note कि कोई पूछेगा आपके भक्तामन में कैसे कहते हैं कि ये कहाँ पर है, तो this is the गाथा नंबर 2 जिसमें कि आदिनाथ स्वामी की स्तुति की हुई है। From here we go over now to the how do we go from Shravak to Arihant Bhagwan? What's the steps from Shravak to Arihant? अप्पा नई वैरणी, अप्पा में कुरसामली, अप्पा काम दुआ देणु, अप्पा में नंदन वर्णन। आत्मा ही सालमली जी के नीचे में जहाँ पे नरक के अंदर गिरते से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं वहां पर जाती है। आत्मा ही वैतरणी नदी जिसमें खून बहता है उसमें जाती है। आत्मा ही स्वर्ग के अंदर अपने कर्मों के अनुसार कामधेव गाय के साथ में रहती है या नंदन वदन में आनंद लेती है। ये सब आत्मा ही डिसाइड करती है। आप सोचिए अपने अंदर जो आत्मा है उसको खोजिए, और हमको किधर जाना है, हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम श्रावक से अरिहंत बन सकते हैं। एक बार की बात है कि एक शिकारी ने एक शेर को बांध दिया और शेर को ऐसी इंजेक्शन दे दी ताकि वो सो जाए। तो बाद में जैसे ही उसका प्रभाव खत्म हुआ इंजेक्शन का, शेर बहुत जोर से ही रोड, बहुत जोर से दहाड़ा, तो सब शिकारी भाग गए। उसी तरह से जो कर्मों ने आत्मा को बांध रखा है, आत्मा जब जागृत हो जाएगी तो सब कर्म भाग जाएंगे। कर्म सर बिग, लुक्स वेरी स्ट्रांग कि कर्मों ने मुझे घेर रखा है, मैं क्या करूं। लेकिन आत्मा जब जागृत हो सकती है, हो जाएगी, तो सब कर्म चले जाएंगे। इसलिए हमेशा जब जागृत रहेंगे तो श्रावक से अरिहंत की ओर अब जाएंगे। अप्पा कत्ता विकत्ता या दोहान या सुहान या, अप्पा मित्रम मित्रम च दुपटियो सुपटियो। आत्मा ही अपना मित्र है। When he does good thing, when he says good thing, when he think good thing. Man is person his own enemy. When he does wrong thing, he thinks wrong, he says wrong, he becomes his own enemy. तो हमको हमेशा डायरेक्शन अपनी पॉजिटिव रखने की है, श्रावक से अरिहंत बनने की। अब ये देखिए जगत की रूप को देखिए, लुक एट द अराउंड द वर्ल्ड। हम कौन से गुणस्थान में हैं? हम श्रावक हैं तो कौन से गुणस्थान में हैं? We should be in the गुणस्थान 4 and 5, और अरिहंत भगवान जो है वो 13 गुणस्थान में है और 14 गुणस्थान में सिद्ध स्थिति है। So this is the ladder that is from 1 to 14. देखिए जगत का क्या रूप है, और आप अपने को पाएंगे कि यू आर सो लकी। किस तरह से जो एकेंद्रीय जीव हैं, कहते हैं ना सूर्य के बराबर एक नोक के ऊपर असंख्य जीव रहते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में जो एकेंद्रीय जीव हैं वो इनफाइनाइट टाइम्स इनफाइनाइट, इतने एकेंद्रीय जीव हैं। और द्विवेंद्रीय जीव लट
पिपीलिका 3 चींटियां, मक्खियां 4, चौवेंद्रीय जीव, पंचेंद्रीय जीव जो असंख्य है, जो इसके मन नहीं है, वो कितने जीव हैं? वो भी असंख्य जीव हैं। और फिर बाद में पंच जो संघी जीव है, संघी तिर्यंची, मनुष्य, देवता और नारकी, वही लोग बचे। सो 99.999% हम उन सबसे ऊपर हैं मनुष्य लोक में, अगर हम अपने आप को रूप समझें कि हम कहाँ पर हैं। अब ये देखिए कि 4th गुणस्थान में जीव कितने हैं? तो संघी, पंचेंद्री, मनुष्य, देवता और नारकी, ये सब हो सकते हैं, होते नहीं लेकिन हो सकते हैं। और फिर पंचम गुणस्थान में फिर जो 5th स्टेज है लड़की, तो बाकी सब 1 to 3 है, बाकी सब नीचे। 5th गुणस्थान में जब जाते हैं तो वो वृत्ति सम्यक दृष्टि होते हैं। वृत्ति सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि मतलब क्या कि ये मेरा नहीं है, सिर्फ मेरी आत्मा है, ये बाकी सब पर पदार्थ हैं। ये जब ब्रेक कर दोगे वेद विज्ञान से, सम्यक दर्शन को पा जाओगे। 4th गुणस्थान में जब आपने व्रत लिया है, तो पंचम गुणस्थान में जब आएंगे आप, तो कौन होते हैं पंचम गुणस्थान में? पंचम स्थिति पे कौन है? देवता नहीं है, क्योंकि देवता लोग वो तप नहीं कर सकते, वो संयम नहीं रख सकते, और नरक में नहीं कर सकते वो, बिकॉज पीपल ऑल द टाइम बीइंग अटैक्ड बाय समबडी एल्स। और तिरंज को तो जानते हैं, तिरंज में आप कितनी दयनीय स्थिति है जानवरों की। तो पंचम गुणस्थान में जो हमको जाना है, तो हम कहाँ पे हैं? पंचम गुणस्थान में कितने जीव बचे बाकी? तक अब चारों ओर देखिए, अगर देवता को निकाल देंगे, नरक को निकाल देंगे, तिरंज को निकाल देंगे, इस धरती पर पंचम गुणस्थान में कितने जीव हैं? अगर 1 करोड़ लोग हैं तो 10 मिलियन पीपल हैं, तो कितने लोग पंचम गुणस्थान में हैं? और हम सब हो सकते हैं उसके अंदर। वी कैन ऑल डू दैट। उसके बाद में 6ठे गुणस्थान में मुनि, साधु। 7वें गुणस्थान में जब प्रमाद का त्याग कर देते हैं कि कोई कर्म मेरे को आए ना, आई विल नॉट बी केयरलेस कि मुझे एनी न्यू कर्मा कैन कम इनसाइड, 7वें गुणस्थान में आ जाते हैं। 8 में 9 और 10, और फिर 10 से जम करके 12 में पहुंचते हैं, तब तपस्या करते हैं और बाद में अरिहंत की स्थिति पाते हैं, केवल ज्ञान पा करके। तो दिस द होल स्टेज फ्रॉम श्रावक टू अरिहंत। देखिए एक गाथा में क्या लिखा है? दम्भो मंगल मुक्तितम अहिंसा संयमो तबो देवावी तम नमंसन्ति जसुद्ध में से मनो। देवता भी मनुष्य को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। क्यों? कि मनुष्य अहिंसा का पालन कर सकता है, संयम रख सकता है और तप कर सकता है। तो देखिए कि हम कितने ऊपर हैं और कितने ऊपर उठ सकते हैं, कि देयर इज इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग गुड। हर व्यक्ति की अपनी खुद जिम्मेदारी है, हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डूइंग utmost good to himself। उसके बाद में सबके आसपास जो भी है उसका भी अच्छा कर सकते हैं, और समाज को अच्छा कर सकते हैं, दुनिया को अच्छा कर सकते हैं। ये सब अपने हाथ में है। भक्तमल सूत्र में, सूत्र नंबर 10 के अंदर एक गाथा है, बहुत सुंदर है। इट गिव यू लिटिल डायरेक्शन, कैसे हम श्रावक से अरिहंत की ओर जा सकते हैं। नात्याद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिस्तुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो तनुनेन किंवा भूत्याश्रितं ह्यनात्मसमं करोति। अब संधि को ब्रेक करिए। न अत्याद्भुतम, अति आश्चर्य की बात नहीं है। हे भुवन भूषण, हे भूतनाथ, हे जीवों के स्वामी, भूतेर गुणेर भुवि, आदर के साथ में अभिष्ट बंतु, आपका ध्यान करके स्तवन जो करेंगे तो तुल्य भवंतु, आपके समान हो जाएंगे। देखिए, दिस गिव्स यू डायरेक्शन, किस तरह से भगवान के समान हो सकते हैं। जैसे दूसरे घर में कहा गया, रामदास, कैलाश दास, गोपाल दास,
तो दास बनने की है स्थिति है, और लोग नाम भी वैसे रखते हैं। ये हमारे इसमें क्या कहा गया है कि यू कैन योरसेल्फ बिकम गॉड। तुल्या भवन्ति भवतो तन्नेन किंवा भूत्याश्रितम यह नात्मन समन करोति। आपके समान हो जाते हैं। तो किस तरह से श्रावक से अरिहंत की ओर हम जा सकते हैं, और ये अलग अलग विधि बताई है। थ्योरेटिकली ये क्या होता है कि एक बोट है, हम उस बोट के अंदर हैं, आप और हम सब लोग, और वो बोट में क्या है कि पानी भरा हुआ है। आप सब लोगों के हाथ में पतवार है, हमारे हाथ में पतवार है, और हम बोट को चला रहे हैं, लेकिन पानी भरा हुआ है। वो पानी किससे भरा हुआ है? आश्रय से, कर्मों के आश्रय से, और हमें जाना है उस पार। तो हाउ डू वी गो? तो सबसे पहले वो पानी को निकालना है। सबसे पहले तो प्लग करना है, जो होल है उसको प्लग करना है, लीकेज हो रहा है, पानी आ रहा है बोट में, उसको प्लग करना है। उसको बोलते हैं संवर भावना। उसके बाद में जो कर्म है उसको बाहर निकालना है, उसको बोलते हैं निर्जरा। तो ये जो विधि है कि पहले कर्म को आने से रोक दो, संवर भावना, उसके बाद में जो कर्म है उसको निकाल दो, जैसे निर्जरा भावना। तो जब सब कर्म निकल जाएंगे तो बोट चल जाएगी, अपने आप ही चलेगी, और उस पार पहुंच जाओगे। तो देखिए ये संवर की भावना में क्या है? 3 गुप्ती, मन वचन काया को प्योर रखना। 5 समिति, जो हम 5 चीज करते हैं दिन भर में, खाना पीना उठना बैठना, उसको केयरफुल करने का है। 22 परिचय, सर्दी गर्म दुख, ये सब बुखार आदि जो भी बीमारी, सब चीज से दूर रहना है, इसको शांति से सहन करना है। 22 परिचय। 12 अनुप्रेक्षा, संसार भावना, अन्यत्र भावना, जो 12 भावनाएं हैं उसका मनन करना। 10 धर्म, उत्तम सत्य संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य, उसका पालन करना, और 5 चरित्र का पालन करना। जब 5 चीजें सब चीज करेंगे आप, तो समर हो जाएगा। वो जो बोट है वो प्लग हो जाएगा, उसकी जो लीकेज सब बंद हो जाएगी। नो मोर न्यू वाटर कम इनसाइड। और जो पानी बचा है उसको निर्जरा के थ्रू, निर्जरा में क्या कहा गया है कि जब तपस्या करते हैं तो निर्जरा होती है, और सब कर्म जो है वो निकल जाते हैं। निर्जरा में जो तप के जो 12 रूप बताए शास्त्र में, 6 जो है इनसाइड के रूप है, 6 बाहर के रूप है जो विजिबल है। तो विजिबल रूप जो है उपवास, होनोदरी, रस परित्याग, व्रति प्रसंख्यात, वियुक्त सयशन और काय क्लेश। ये उपवास तो जानते हैं कि अनशन करना, कुछ खाना नहीं सर्टेन टाइम के लिए या पूरे दिन के लिए। होनोदरी इज द इजीएस्ट थिंग वी कैन डू ऑल ऑफ अस, कि कुछ खाना खाया है तो एक थोड़ा सा पार्ट कम कर दें। होनोदरी कर, उसमें क्या है कि त्याग की भावना आ गई। इस तो कंसिडर होनोदरी कंसिडर स्ट्रॉन्गर, मोर सुपीरियर देन द उपवास। रस परित्याग, एक रस का त्याग किया, 6 रस हैं, एक रस का त्याग किया। व्रति परिसंख्यात, 6-7 चीज लिखी, एक आइटम को कम कर दें। पार्टी में गए, 20 तरह के स्वीट हैं, 3 स्वीट कम कर दें। वियुक्त सेशन, थोड़ी देर अपने आप में अलग से 5 मिनट अपने समय अपने आप को दें, अपने आप को दें। काया क्लेश में आप कुछ योगा करें, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करें, तपस्या के थ्रू करें, तो तपस्या करने में हेल्प होगी। जो अंदर के जो 6 तप हैं, प्रायश्चित में सबसे करेंगे तो एक तरह से यू टेकिंग अ वॉश, कि अपने आप को धो डाला। सो प्रायश्चित करके प्यूरिफाई कर सकते हैं विनय के साथ। यू लर्न लॉट ऑफ थिंग, विनय के साथ, रिस्पेक्ट के साथ रहें, गुरु देव शास्त्र गुरु का विनय रखें। वही व्रत, हेल्प आउट द वर्ल्ड, स्वाध्याय करने का, हर दिन में थोड़ा स्वाध्याय करें, कम से कम एक पेज तो जरूर पढ़ें। तो उससे जब आप पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली यू गेट समथिंग दैट यू रेड सो मेनी टाइम्स, लेकिन यू डिडंट गेट द मीनिंग। बट जब पढ़ते हो तो कभी कभी हर एक में से वही चीज, इफ यू रीड अगेन एवरी टाइम यू गेट सम न्यू थॉट अबाउट इट, यू लर्न समथिंग इवन यू रेड मेनी टाइम्स। तो स्वाध्याय में करें हर दिन। व्युत्सर्ग मतलब ये मेरा नहीं है और ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है और मैं ये नहीं हूँ।
दिस वेरी वेरी हाई लेवल। और उसके बाद में ध्यान, ध्यान इज द लास्ट स्टेज तब का जिसमें कि जितने भी जीव सिद्ध हुए, अरिहंत हुए हैं, जो महान हुए हैं, वो ध्यान के कारण से ही हुए हैं। तो ध्यान में अपना समय निकालें। तो ये स्टेप बताई पड़ी। सो नो, आप देखिए कि वी अंडरस्टैंडिंग होल थिंग कि श्रावक से अरिहंत की स्थिति कैसे हम पा सकते हैं, एंड देन यू गेट ए कॉन्फिडेंस कि आई कैन डू एनी ऑफ दोस थिंग्स, आई हैव द कैपेबिलिटी एंड आई हैव द टाइम टू डू इट। तो फर्दर स्ट्रेंथन दैट, शास्त्रों में 16 भावनाएं कही हैं। ये इससे तीर्थंकर नाम का उनका बंधन होता है। हालांकि हम इस पंचवाड़े और छठे आरे में तीर्थंकर नहीं बन सकते, लेकिन नाम तीर्थंकर नाम का उनका बंधन हो सकता है। उसकी 16 भावनाएं क्या हैं उसका देखिए, हम वर्णन करते हैं एक के बाद एक। और दिस इज दैट, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, दिस इज द वे ऑफ लाइफ। तो हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ये सोच सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, कितना कर सकता हूँ इस सब के बारे में। नंबर 1, दर्शन विशुद्धि, प्यूरिटी, 100% प्यूरिटी। ब्रह्म जाओ भगवान के अंदर, भगवान के साथ मिल जाओ दर्शन विशुद्धि में। एक बार की बात है कि एक देवदत्त नाम का व्यक्ति था, तो वो खुद तपस्या करता था। तपस्या करने से उसे आकाशगामिनी विद्या सद गई। आकाशगामी मीन्स यू कैन फ्लाई इन द एयर। तो वो दूर दूर द्वीप में जाकर के, नंदीश्वर द्वीप में, मेरू पर्वत के ऊपर समेत शिखर जी ऐसे जाने लगा और खूब आराधना करने लगा। उसका जो एक मित्र था सोमदत्त, तो बोला तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो? तो उसने बताया कि मैं तो इस तरह से करता हूँ, मुझे आकाशगामिनी विद्या है और मैं जाके आराधना करना चाहता हूँ। तो बोला मुझे भी करना है, ये आकाशगामिनी विद्या कैसे सहन होगी? तो उसने बताया कि देखो, देयर में बी सो मेनी वेज। एक तुम काम कर सकते हो, यू कैन गो टू जंगल, आउट ऑफ द फॉरेस्ट, और लोहे के सलिए ले जाओ और नौका मंत्र पढ़ के उसके ऊपर कूद जाओ। इफ यू एबल टू डू दैट, तो ये आकाशगामिनी विद्या आपको सज जाएगी। तो वो जाता है जंगल में, एंड he pushed those iron bars up in the air, dig in the ground, and then he goes on the tree and try to jump up. लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही। He tried several times, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि उसके ऊपर कूद जाए। So on the other side में अंजन चोर और आता है, उसके पीछे पुलिस जाती है। तो अंजन चोर इज जस्ट अबाउट टू बी काट, और उसको काट करके उसको जो भी सजा होगी, फांसी होगी, जो भी देने वाले होंगे, तो वो पूछता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, तुम क्या कर रहे हो? तो सोमदत्त बोलता है कि मैं आकाशगामिनी विद्या से इस पे जंप कर रहा हूँ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हो रही इसके ऊपर जंप करने की। तो बोलता मैं जंप करूंगा क्योंकि अभी ही इज नथिंग टू लूज। सो अंजन चोर बोलता है आनम थानम कछु न जानम श्रेष्ठ वचन परमाणम। जो भी स्टेटमेंट बोला उसको मैं फॉलो करता हूँ, मैं जंप करता हूँ। वो जंप कर गया और उसको आकाशगामिनी विद्या सर्जन हो गया, स्टार्टेड फ्लाइंग। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग भी यही करें, लेकिन कहने का मतलब श्रद्धा से करें। जैसे कि एक नौकार मंत्र की माला पढ़ रहे हो आप और 100 माला पूरी हो गई और 8 बची हुई है, तो भाव उसमें ऐसा होना चाहिए, भगवान ये 8 माला पूरी ना हो। एक तो ये भाव होता है चलो ये 8 माला पूरी होगी, मेरी नौकार मंत्र की माला पूरी हो गई। ऑन द अदर हैंड ऐसा भाव है कि भगवान ये मात्रा कभी खत्म ही ना हो, मैं कीप डूइंग इट आपकी आराधना में। मतलब इतनी विशुद्धि होना चाहिए, दर्शन विशुद्धि। एंड दैट इज द फाउंडेशन। ये 16 भावना है, किसी फाउंडेशन है कि ये होगी तभी अदर थिंग्स गोइंग टू वर्क, अदर नॉट गोइंग टू वर्क। दूसरी भावना है विनय संपन्नता। रेस्पेक्ट रखेंगे तो नॉलेज मिलेगा। विनय संपन्नता आपको पता है कि भगवान महावीर स्वामी जब नैसार के जीव में थे तो उनको एक मुनि मिले, तो उन्होंने बहुत आराधना की, उनको आहार दिया, उनका वचन सुना, तो सम्यक की प्राप्ति हो गई। सम्यक इज द ज्वेल
जो कि प्राप्ति हो गई, दैट सेव्स यू फ्रॉम बुरी गतियों से। सो दूसरी आपने सुना होगा जब ऐसी कहानी आती रामायण में कि रावण जब अंतिम समय में था तो उस समय राम ने बोला लक्ष्मण को, जाओ, ये बहुत ज्ञानी है, इस जीवन से जा रहा है, ट्राई टू लर्न फ्रॉम हिम व्हाट ही सेज। तो लक्ष्मण जाता है और राम के सर के वहां जाके पूछता है, टेल मी व्हाट आर दोस थिंग्स आई शुड बी डूइंग। Ravan doesn't say anything. So Lakshman comes back to Rama. Rama says, what do you do? What did you say? What did you get? So he didn't tell me nothing. बोला कहाँ खड़े थे? बोले सर के पास खड़ा था। बोला नहीं, उनके पाँव के चरणों में जाके पूछो उनसे तो बताएंगे। So Ravan then tells him things what should be doing. एक मटकी है, उसके ऊपर ढक्कन पड़ा है, तो वो देखता है, ढक्कन देखता है कि ये सब लोग आते पानी पी के चले जाते हैं और तरस लगती है, लेकिन मैं तो प्यासा ही रहता हूँ। तो मटके से पूछता है कि क्या क्या बात है, मैं तो आपके साथ हूँ लेकिन मुझे कुछ मिलता नहीं है पानी। तो बोला तुम मेरे सिर के ऊपर बैठे हो, कैसे मिलेगा? तो विनय की भावना में तुम्हें रेस्पेक्टफुल होने का है, तो ज्ञान जब बढ़ेगा उस तरह से। तीसरी भावना है व्रतानुचार। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, इनको फॉलो करने का हमको, और मुनि हो तो महाव्रत पालन करने का। नंबर 4 आवश्यक इसमें ज्ञानोपयोग, अभिक्ष ज्ञानोपयोग, मतलब कंटिन्यूसली भावना ऐसी होनी चाहिए कि मुझे नॉलेज अर्न करूं, नॉलेज अर्न करते करते केवल ज्ञान तक को पा जाऊं। तो जब तुम ज्ञान अर्जन करोगे, तुम्हारी जो व्रत की है, व्रत भी स्ट्रांगर, जो व्रत के भावना फॉलो करोगे वो भी स्ट्रांगर होगा। और अभिक्ष संवेग, संवेग मतलब कि मन में ऐसी भावना रहे कि मुझे कोई नया कर्म न लग जाए, मुझे कोई नया कर्म न लग जाए, मुझे कोई नया कर्म न लग जाए। संवेग की भावना, बी अफ्रेड कि कर्म जब टेक ओवर टू यू, देन यू हैव नो कंट्रोल। तो अब बिफोर कर्म कमिंग यू हैव कंट्रोल। सो संवेग की भावना हमेशा मन में जागती रहे, टेक डायरेक्शन ऑफ श्रावक टू अरिहंत। छठी भावना है त्याग। आपको पता है शालिभद्र के बारे में, ही वाज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। वो एक बार गरीब बच्चा था, ब्राह्मण, बहुत गरीब ब्राह्मण बच्चा था, तो उसके पास खाने को कुछ नहीं था। तो आसपास से मदन ने इधर उधर मांगा और उसके थोड़ी खीर बनाई, और खीर बना के खाने वाला था कि एक मुनि जी के दर्शन हो गए। तो उसने मुनि जी को आहार के लिए बुलाया, और जो खाना था सब मुनि जी को उसने आहार में दे दिया, ना एक दाना भी न बचा। बड़ी लास्ट दाना तो उसको भी चाट रहा था। एनीवे, तो उसके बाद में जब गया तो नेक्स्ट लाइफ में वो शालिभद्र बना। तो त्याग की बड़ी महिमा है, दान की बड़ी महिमा है। 7th is तप, और ये सब हम कर सकते हैं अपनी शक्ति अनुसार। तप करने से आपको, जैसे हमने ऑलरेडी पहले अपन ने बात की थी कि बाय डूइंग तप यू प्यूरिफाई योर सोल। एक मेघदूत राजा की कहानी आती है। मेघदूत राजा, एक बार उसके बारे में स्वर्ग में बात हो रही थी उसके बारे में कि बहुत महान राजा है, बहुत सात्विक है, सबकी रक्षा करता है। तो 2 देवता लोग आए, एक कबूतर बना और एक बाज बन के आया, और कबूतर आकर के उनके शोल्डर पे आके बैठ गया, और बाज आया, बोले मैं कबूतर खाऊंगा, कि मुझे खाने का चाहिए, तो यू टेकिंग माई मील। तो उसने बोला कि मेरे को खा जाओ लेकिन कबूतर को ना खाओ। तो अपने हाथ काट करके उसको देने लगा। तो फिर देवता प्रत्यक्ष आ गए और उसको आशीर्वाद दिया, नहीं हम आपको पहचान ना पाए, और आशीर्वाद देके चले गए। यही मेघनाद राजा ने बाद में खूब तपस्या की और भगवान शांतिनाथ बने। आपको पता है कि 25वें भव में भगवान महावीर स्वामी जब राजा नंद थे, खूब तपस्या की, उन्होंने तीर्थंकर नाम कम का बंधन किया, और बाद में 27वें भव में अरिहंत बने। 8th साधु समाधि। साधु वो है, जहां भी आपको मौका मिले साधुओं को हेल्प करिए।
9th में वैयाव्रत। वैयाव्रत मतलब you want to do good to the world, सबका अच्छा हो, सबका भला हो, help out the world। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब लोग संसार में सुखी रहें, ऐसी भावना रहे। जितने साधु हैं वो निरामया स्वस्थ रहें और सब दुख दुनिया का दूर हो जाए, ऐसी भावना हमेशा साथ में रखें। वैयाव्रत की भावना, सेवा की भावना। दूसरा श्लोक है दोषापयन्तु नाशम श्रीमस्तु सर्वजगतः परितनीता भवन्तु बुद्धगणा दोषापयन्तु नाशम सर्वत्र सुखी भवतु लोका। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सब रोग शोक मिट जाए और सब जगह सुखी सुख फैल जाए। कितनी सुंदर भावना है। सो जब धरती से पांव रखें अपने बिस्तर से उठते समय, पहले सब जीवों का कल्याण की भावना के साथ ही रखें। तो दिस इज अनदर वे कि तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन हो सकता है, श्रावक से अरिहंत की ओर जा सकते हैं। 10th इज अरिहंत भक्ति, 11th इज आचार्य भक्ति, 12th इज उपाध्याय भक्ति, 13th इज प्रवचन भक्ति। भक्ति में क्या होता है कि गुणों का अनुराग होता है, गुणों का बंधन होता है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कम्बुभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानम वंदे तद्गुण लब्धये। मोक्ष मार्ग की जो नेता हैं वो कर्म भृताम, जिसने कर्म के पर्वतों को भेद दिया है, वो भेदने के बाद में ज्ञाताराम विश्व तत्वानाम, उनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, क्योंकि मौनी कर्म, ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, अंतराय कर्म का नाश हो गया, तो उन्हें केवल ज्ञान प्राप्ति हो गई। ऐसे भगवान को मैं, उनके गुणों को मैं नमस्कार करता हूँ। तो अरिहंत भक्ति बहुत ही, अब जब हम करते हैं, सभी लोग करते हैं, अच्छे भाव से करें। एक बार कहानी आती है, रावण कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहा था और उसका वीणा का तार टूट गया, तो उसने अपने बॉडी में से 10 नस निकाली, नर्व निकाली, एंड ही जॉइंड द वीणा एंड ही कंटिन्यू प्लेइंग। उस समय उसे इतने भाव से किया उसने कि उसे तीर्थंकर नामकरण का बंधन हो गया। 14 इज आवश्यक अपरिहानी, 15 इज वात्सल्य, 16 इज प्रभावना। तो 14 आवश्यक परिहानी के ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे इसके बाद में। ये आवश्यक परिहानी क्या चीज है? आवश्यक मीन्स रिक्वायर्ड, अपरिहानी मीन्स मिसिंग। वी डोंट वांट टू मिस इट, एवरीडे हमको करने का है। हर श्रावक को ये आवश्यक परिहानी करने की। आवश्यक परिहानी में देखिए क्या चीज है। नंबर 1 इज सामायिक, नंबर 2 इज चतुर्विधि स्तवन, नंबर 3 इज वंदना, नंबर 4 इज प्रतिक्रमण, नंबर 5 इज प्रत्याख्यान, एंड नंबर 6 कायोत्सर्ग। ये चीज हमको हर दिन करने की है। इससे भी तीर्थंकर नामकरण का बंधन होता है। लेकिन एक बात न भूलने का है कि नंबर 1 दर्शन विशुद्धि होना ही चाहिए। दर्शन विशुद्धि के बिना एवरीथिंग डजंट वर्क। जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे तो गाड़ी चलेगी नहीं, पेट्रोल तो होना ही चाहिए। ये देखिए, आइए पहले सामायिक के बारे में हम बात करते हैं कि सामायिक में 2 चीज बताई गई है। नंबर 1 कि 18 पाप स्थान को दूर करने का है। करम भंते सामायम सावज्यम जोगम पच्चकामी जाओ नियम पज्जुसामी दुयंतरमाणन बाणनम कार्यन करामि तस्तबंते परिकामी निंदामी गरिहामि अपनम वो सुरामी। ये 18 पाप स्थान क्या है? 4 कषाय, 5 अव्रत, राग द्वेष, अरति अरति, ये 12 अकपप, एलिगेशन के एलिगेशन करना, कलह करना, पर परिवार मतलब किसी के ऊपर किसी गॉसिपिंग करना, और पैशुनी में चुगली करना, बैक बाइटिंग करना। ये 16 और 17 माया मर्शावाद, मतलब कि माया और मर्शावाद, झूठ को
ट्विस्ट करके करना। दिस इज 17th और 18th मिथ्यात्व शल्य, रॉन्ग थिंग पे बिलीव करना। ये 18 चीज, जैसे ही हम उठते हैं बिस्तर से, उठते से 18 पाप चालू हो जाते हैं, तो बी अवेयर कि ये न करें। समय के दूसरा रूप है साम्य भाव, समता भाव रखने का है। हर समय कई बार सामयिक करें। दूसरा सामयिक में एक आचार्यों ने बहुत सुंदर किया है कि इसमें 6 ही सामयिक, चतुर्विधि, स्तवन, वंदना आदि जो हैं 6 ही इसमें ऑटोमेटिकली इसमें आ गए। देखिए कैसे आते हैं। करमी भंते सामान्य सावज्यम जोगम पच्चकामी। भंते मतलब 24 तीर्थंकर भगवान, सामायिक में सामायिक किया, पच्चकामी मतलब प्रत्याख्यान किया। तस्य भंते पडिकामी निंदामी गरिहामी अपरम वस्त्रामी। भंते भंते जो सेकंड टाइम बनता है उसका वंदना करने का है, पडिकामी मतलब प्रतिक्रमण करने का है, अपरम वस्त्रामी तो कायस्थ करने का है। सो दे डिड सच ए ब्यूटीफुल थिंग कि अगर सामायिक करेंगे या प्रतिक्रमण करेंगे, दोनों में ही ये आवश्यक परिणाम 6 चीज आ जाती है। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। सेकंड स्टेज में चतुर्विधि स्तवन, 24 भगवान की स्तुति। 24 भगवान में ओम रीम अरहम नमः, इसमें से भगवान आ गए, अरिंद भगवान आ गए। या फिर लोगोस के पढ़ेंगे, लोगोस को 3 बार करने का हर दिन। लोगोस जो करे धम्म तीर्थ रहे जिन्हें। हे भगवान, तीनों लोकों में जब आप पधारते हैं, तीनों लोकों में प्रकाश, तीनों लोग प्रकाशमान हो जाते हैं। दूसरी गाथा में आता है एवं मैं अभी तो विहर मेला पही जन्मना 24 तिथरा में पश्यंतु। कि भगवान आपका आशीर्वाद हर जीवन में मेरे साथ रहे। कितने बंदे में ये जय लोग उत्तम सिद्धा आरोग्य बहुलाभ समारण मुत्तंतु। भगवान मेरा आरोग्य हमेशा अच्छा रहे, ये कर्म का स्खलन होता रहे, समय मतलब आई स्टे इन हाई स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस, ये भगवान से मांगी हुई है। आइए जिससे वंदना में क्या होता है। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धार्थ सिद्धिसिता आचार्य जिन शासनो नति करा पूजा उपाध्यायिका। श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रय राधिका पंचेंदी परमेस्तिनम प्रतिदिनम कुर्वन्तनो मंगलम। या आप साथ में भी गा सकते हैं। ओकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदेव मोक्षदम चैवम ओकाराय नमो नमः। अरिवल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि वीर पास्ति तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम। अज्ञान तिमिरांधम ज्ञानम जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं नयनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। परम 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 गुरुदेव नमो परम्पराचार्य गुरुदेव नमो। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसम परिवर्धकम धर्म संबंधकम। ये ओकार की साधना है। ओकार में वर्ड बने हैं अ मीन्स अरिहंत, आ मीन्स अशरीरी, आचार्य का आ, उ मतलब उपाध्याय और म मतलब मुनि। सो ओम के अंदर पूरा नौका मंत्र आ गया है। ओम उसमें अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सबको नमन। तो ये दिस इज इधर बीज मंत्र है, इसको ओंकार की साधना कहते हैं। फिर तीसरी वंदना में नमोत्थम आता है। नमोत्थम अरिहंतारम भगवंतारम, इतनी सुंदर गाथा की है, बहुत भाव से करें। नमोत्तरम अरिहंतम में अरिंद भगवान को नमस्कार करता हूँ। आय गरण तीर्थराम, जिसने भगवान सर्व तीर्थ की स्थापना की। आय गरण जिसने ग्रंथ रचे हैं, ग्रंथ की स्थापना की है। 4 अंगुर 12 अंगुर 14 पूर्व की स्थापना की है। और लोक नहाणम, लोक के नाथ हैं, लोक हयाणा लोक का हित करने वाले हैं। बहुत सुंदर जो गाथा है उसको हम क्या करें। इस समय श्रीमंदिर स्वामी हमारे तीर्थंकर भगवान है महाविद्या क्षेत्र में, तो उनका ध्यान करके और ये नमोत्थरम का पाठ करें 3 बार, तो भगवान आपकी बात सुनेंगे। क्योंकि केवल ज्ञानी है भगवान, इस समय है, विद्यमान है, एग्जिस्टिंग है महाविद्या क्षेत्र में। उनका नाम लें। फिर 3 त्रायो है, ये इसका करने से अनंत यू गेट इनफाइनाइट गुड कर्मस कमिंग इन। जनकिंची नाम तीर्थम सगे पायाले मानस लोह जाय मुंबई में ताय समंदा में। जितने भी तीर्थ हैं नाम तीर्थम
स्वर्ग पाले, स्वर्ग में और पाताल में, तो पाताल के अंदर, उसमें जो तीर्थ हैं, उसमें जो भगवान हैं विराजमान, सबको मेरा प्रणाम। जावंती चयम उड्डय अहय त्रिलोय सवंताय मंदे सत्य तत्व संताय, जितने भी चैत्य हैं, उड्डय है मतलब आकाश में, अहय मतलब पाताल में, उसमें तीनों और तीनों लोकों में, उसमें जो गली गली में जो मंदिर है, उसमें जो भगवान विराजमान है, पूरे पूरे संसार में, यूनिवर्स में, उसमें जो भगवान, सबको मेरा प्रणाम। जवंत के सब भरे महाविद्या सवे तिनते सिंह प्रणति विनयनम, जितने साधु हैं तीनों लोक में, इंक्लूडिंग भरत ऐरावत क्षेत्र और महाविद्या क्षेत्र में, उन सबको मेरा प्रणाम। It's a beautiful thing that we should do every day. तो सबको अंत में कितना ही अच्छे कर्म अंदर आएंगे। फिर वंदना में वो सगुण पाठ करें। तत्सगरो मारी ठजरा जंती उसाम चित्तो दुरे मन तो तुझे पणामयी बहु फलोई नरतिर से विजय पांतिम तुम गच्चम। जितने जो जो कर्म हैं वो सब महामारी कर्म जो भी हैं वो चले जाएंगे। जैसे अभी चल रहा है ना वायरस, उस तरह से उस सब का अंत करने समय एक बार ये भद्रबाहु आचार्य भद्रबाहु ने बनाया था ये वो सगम। तो उस समय क्या हुआ कि वहामीर और भद्रबाहु स्वामी दोनों भाई भाई थे। एंड जब राजा के वहां पे लड़का हुआ, बच्चा हुआ, तो वरामीर ने बोला कि आपका बच्चा 100 ईयर्स रहेगा। वो भद्रबाहु स्वामी वहां पे गए नहीं। बाद में जब राजा ने बुलाया भद्रबाहु को, बोला कि ये तो बच्चा 7 दिन में मरने वाला है। बिल्ली के थ्रू कैसे मरेगा? बिल्ली के थ्रू मरेगा। सब बिलाड़ियों को शहर के बाहर भेज दिया और 7वें दिन ऊपर से एक ताला गिरा और बच्चे के ऊपर गिरा, बच्चे की डेथ हो गई। तो ताले के ऊपर जो बिल्ली का साइन था वो बच्चे के मुंह पे लग गया। तब जो वहां मीर था वेरी डिस्टर्ब और वो बहुत अपसेट होकर चले गया। और बाद में वेंटर बना और फिर जितने जो लोग थे वहां पर अलग अलग तरह से लोगों को तंग करने लगा और महामारी फैलाई। तो भद्रबाहु ने, स्वामी ने वो सब उनको पाठ की रचना की और लोगों की रक्षा की। तो जैसे अभी चल रहा है ना इस तरह का सब तरफ ऑल ओवर दिस रोग, दिस महामारी चल रही है, दिस वायरस गोइंग ऑन, कैलेमिटीज गोइंग ऑन। तो वो सब पाठ करने का है। वो सब पाठ का एक शॉर्ट फॉर्म है, बीज मंत्र बोलते हैं, वो भी कर सकते हैं। ओम रीम अरहम नमीन पास वेसवेस जिनलिंगम रीम चिम नमः, ये भी कर सकते हैं। आगे चलिए। तो चौथे में हम प्रतिक्रमण, ये अवश्य पढ़ाई करने में। प्रतिक्रमण में खामे में सब, आप एक बार बोलिए मेरे साथ में। खामे में सब जीवे खमन तुम्हें मित्य में संभुवे सुवैरम मज्जन केरवी। अपने जो रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, ग्रैंड सन है, जिसको वो देश में फ्रेंड ने जितने, सबका नाम ध्यान करके 1 मिनट के लिए सबसे क्षमा मांगी। प्यूरिफाई योर सोल। अगला बात जो है, एक बार क्या होता है कि एक मुनि है, बाल मुनि अयमुक्ता, तो वो गौतम स्वामी के साथ, अरे भगवान महावीर स्वामी की बात है, गौतम स्वामी के साथ देखा उसने, वो साथ हो गया। एंड देन he was so impressed, so I want to be मुनि। तो फिर उसको दीक्षा दी उसके फादर मदर के कंसर्न के बाद में। सो वो बच्चा खेल रहा था एक बार, तो he was with another मुनि, and then the other मुनि was very upset because he was playing this thing like this। मुनि होने के बाद में तो अतिमुक्ता का बहुत ही प्रायश्चित किया उसने और उसको वहीं पर केवल ज्ञान हो गया। तो प्रायश्चित इतना महत्व है। और नेक्स्ट स्टेप इज प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान में पचकर लेते हैं, तो इट टेक्स सम डिसिप्लिन इन योर लाइफ एवरी डे। जैसे कोई ओथ लिया है कि आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। कुछ समय साइलेंट रखने का आप कर सकते हैं प्रत्याख्यान में कि मैं इतने समय से इतने बजे तक साइलेंट रखूंगा या फास्टिंग करूंगा। तो इसी कर ओन वे यू कैन डिसाइड कि पचकरण कैसे से क्या कर सकते हैं, लेकिन बिल्ड अप इन योर लाइफ डेली रूटीन। और लास्ट वन जो है कायोत्सर्ग। उपसर्ग क्षयांति छिदंते विघ्न वरे मन प्रसन्नता में ती पूज्य माने जिनेश्वरे। किस तरह से अगर आप बहिरात्मा से अंतरात्मा में जाएंगे तो सब दुख दूर हो जाएंगे।
आउटसाइड में तूफान चल रहा है, पानी चल रहा है, क्लोज योर डोर, देन यू आर सेफ एट होम। तो इस तरह की भावना बहिरात्मा से अंतरात्मा जाने की है। इसमें कहा गया है कि जब कालसा करने बैठे तब तस्तुत्तरीकरणम पाइच्छिकरणम विस्वरीकरणम विसलीकरणम पावनम कमतमानम निगायठाम थामिकाव सगम, कि ऐसे जैसे धोने से पानी धोते हैं धोबी, उस तरह से कर्म को धो करके साफ कर लीजिए। अनर्थ में अनर्थ उसमें श्लोक में आता है तस् कामिकाव सगम, कि ये तस्तु कि इस तरह से कि मन थानेनम मोनेनम झानेनम अपनम वोसरामी, कि मन को स्थिर करें, काय को स्थिर करें और वचन को स्थिर करें और ध्यान करने बैठे। इससे ये हम लोगों की पाठ करते प्रतिक्रमण में वो वही तरीका है स्थिर करके ध्यान करने का। ध्यान करने से जैसे हमने कहा पहले, इट डिस्ट्रॉय लॉट ऑफ कर्मास। लेट्स डू ए स्मॉल स्किप। किस तरह ध्यान की स्थिति क्या होती है कि रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, और 2 मिनट के लिए आप ध्यान करें। इसकी विधि क्या है कि सब जो स्टे इन द प्रेइंग मोड एंड डोंट ड्वेल ऑन अनहैप्पी मेमोरी। फिर बॉडी को स्ना करके डीप ब्रेथ ले लीजिएगा, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। फिर नौकामंत्र को सांस के साथ अंदर स्थापित करें और सांस छोड़ते समय सब ऑल द बैड कर्मस गो अवे, ऐसा ध्यान करें। डू 2-3 टाइम्स। फिर डीप सांस लें और फिर जितने लोगों से तुम्हारा बुरा व्यवहार हुआ है, पीपल वो मिसट्रीटेड यू, तुम्हारा को यू डिड रॉन्ग थिंग विथ यू, उन सबको क्षमा करें। फिर डीप सांस लें। तुमने जिसके साथ में जो भी कुछ तुमने रॉन्ग किया है उसके लिए सबसे क्षमा मांगे और वो भी मुझे क्षमा करें। तो ये भाव रखें। फिर डीप सांस लें। फिर पूछें कि मैं कौन हूँ? मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, बुद्धि नहीं, संस्कार नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं अंतरात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ और सब में भगवान है। ऐसा विचार करें, ये भगवान माहिर का संदेश है। सब में भगवान को देखो, अपनी आत्मा में भगवान को देखो और सब में भगवान को देखो। ये चीज जो है इस समय ये सब भाव रखने का है। ये सब करने से तुम्हारा जीवन जो है श्रावक से अरिहंत की ओर जाएगा। अब कुछ हम वायरस के बारे में कहेंगे। अभी जो चल रहा है वो कि कैलेमिटीज चल रही है, तो जैन धर्म के अनुसार क्या 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 कर सकते हैं हम? देखिए, जब जीव इस दुनिया में आता है और जाता है तो साथ में कर्म को ले जाता है, द्रव्य कर्म को ले जाता है, ज्ञानमणि, दक्षिणामणि, वेदनी को, मोहनी कर्म, आयु नाम गोत्र अंतराय। तो असाता वेदनी कर्म साथ में रहते हैं, साता वेदनी कर्म साथ में रहते हैं। तो वो जो कर्म है उसको कम ज्यादा कर सकते हो, अपकर्षण से अपकर्षण से, तो ऊपर नीचे कर सकते हो। जब व्हेन यू कीप पॉजिटिव थिंग, तो जो इंटेंसिटी है उसको कम कर सकते हो, बैड कर्मास को। वही दूसरी, तो उससे क्या होगा कि सातावेदनी कर्म का स्ट्रांग होगा, असातावेदनी कम होगा। और दूसरा एक संक्रमण होता है इसमें कि कर्मास चेंज फ्रॉम बैड कर्मास टू गुड कर्मा। तो असातावेदनी कर्म कैन चेंज इनटू पॉजिटिव कर्मा, गुड कर्मास। तो वो अपने जो कर्म की जो इंटेंसिटी है उससे कम होगी। सो डेवलप इनर इम्यूनिटी। So asatavedni come into satavedni means everything can become good from bad. तो ये ख्याल रखने का है। और हम क्या कर सकते हैं? रोज प्राणायाम कर सकते हैं, काया क्लेश, व्यूसहसन ध्यान करके और डीप ब्रीदिंग करके, और अपने को डिफेंस सिस्टम डेवलप करके इनसाइड में, और कीप पॉजिटिव थिंग, अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। सब विधि है। मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप इसको फॉलो करें और जो भी अपने शास्त्र में लिखे अनुसार आगे जीवन को पवित्र बनाएं। इसके साथ में ये प्रवचन समाप्त होता है। इसके बाद में हम अब अपने कुछ ये जो भजन लिखे हैं
महाराज ने की है। तो 2 भजन क्लासिकल भावना क्लासिकल रागा में है। पहला जो है वो राग यमन के अंदर है, वो भाव कर्म के बारे में कहा गया है। तो भाव कर्म को कैसे प्योर रखें, दिस इज दिस एंड द सेकंड वन इज कि हम आसक्ति कैसे कम करें। So this is in Rag Yaman. So we will start that mantra. Okay. Start the stotra. Okay. संकट भरी है ये जीवन की राहें, सफर इतना होकर फिर भी भूल जाए। संकट भरी है स्वधर्म ये बुलाए, आत्म को रुलाए। स्वधर्म ये बुलाए, आत्म को रुलाए। लोभ ही जीवन का पथ ये जो बनाए, सब कुछ छोड़ जाए। क्या हम यह न जाने, कोई इतना कह दे, क्या हम संग ले जाए। संकट भरी है माया, माया में ओ क्रोध या आवेश में। माया, माया में ओ क्रोध या आवेश में, गुंधता गया यूं जीवन का है पथ ये। सम्यक जोड़ अपना विचार कर न छुए, कोई इतना कह दे, जब पथ ये खो जाए। संकट भरी है ये जीवन की राहें, सतर्क इतना होकर फिर भी भूल जाए। संकट भरी है। निर्मल जी जी अभी एक और आप स्तवन कर दीजिए, और उसके बाद क्योंकि ये जूम का टाइम बाद में कट हो जाएगा, इसलिए यस यस श्योर। एक और पढ़ एक के और बाद में स्तवन ओम मंगलम करेंगे, और उसके बाद फिर आप बोलिएगा। ना, एक स्तवन करके मुझे दे दीजिए, बाद में आप, मैं बोलूंगा, बाद में आप ओम मंगलम कीजिए। ओ ब्यूटीफुल। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। हम जग से आसक्ति करते रहे, हम जग से आसक्ति करते रहे, रोते भी रहे, हंसते भी रहे, रोते भी रहे, हंसते भी रहे। यूं ही आंख बिचौनी में रमते रहे, यूं ही आंख बिचौनी में रमते रहे, रोते भी रहे, हंसते भी रहे, रोते भी रहे, हंसते भी रहे।
ये मंजो उछला कोई बात हुई, शांति छूट गई अशांति भई। ये मंजो उछला कोई बात हुई, शांति छूट गई अशांति भई, खूब अशांति भई। हम अपना ही रूप, हम अपना ही रूप बुलाते गए, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। वतन के रास्ते सजाते रहे, कच्ची राह छूटी और घूमते रहे। वतन के रास्ते सजाते रहे, कच्ची राह छूटी और घूमते रहे, और घूमते रहे। हम अपना ही दीप, हम अपना ही दीप बुझाते गए, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। हम जग से आसक्ति करते रहे, हम जग से आसक्ति करते रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। आइए। जय जिनेंद्र। निर्मल जी, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पूरे जैन सेंटर ऑफ सिंसिनाटी और डेटन की तरफ से आपने आज जो ये हमारा ज्ञान एनलाइटन किया, और आपने बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था, और काफ़ी गहरा सब्जेक्ट है ये इसमें, और इसमें हम सबको थोड़ा टाइम लगेगा पूरा इनहेल करने में, and we will need more guidance from you. So we are very, very thankful to you. You did a very, very wonderful job. Appreciate that very, very much. I appreciate your coming in and your giving us your time, important time, valuable time. And now I want to thank, other than that, you is Tejas Shah. He is from Chicago Center, but he came forward and helped Harshad Bhai and Harshad Bhai, our own center. I want to thank him also a lot, that they both put this whole virtual program together, and it was a flawless program. Tejas Bhai, you did wonderful job. And once again, thank you so much to everybody. And now all the listeners who are online signed up, I want to say that we have another virtual program which is already set up, that will be on June 28th, Sunday. Time is not decided yet, but this will be another mega program. This will be from Shamanji Shrut Pragyaji, who is going to come for the Paryushan if everything gets okay. But we will have his program on 28th of June. That will be virtual program of Shaman Shrut Pragyaji. And we are working on the time because he is in India and we are here. So we will announce that time later date in our email. So I appreciate each and every one for joining us today and make this program a very successful. And Nirmal ji, एक बार फिर से आपको हमारा प्रणाम और नमस्कार। आपने बहुत ही बढ़िया किया, और आपसे हम फिर भी बात करेंगे और फिर दूसरे प्रोग्राम भी स्केड्यूल करेंगे। आप ले लीजिए अभी मांगलिक। जी हाँ, ओके।
ओके, सब सकल संत को मेरा प्रणाम। और पहले मैं ओम मंगल गाऊंगा, उसके बाद में हम चत्तारी मंगलम और उसका समर्पण करेंगे। ओम मंगलम, आप सब भी साथ में गा सकते हैं। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, नमो मंगलम नमोकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, आदि मंगलम आदिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, शांति मंगलम शांतिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, नैमि मंगलम नेमिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, पार्श मंगलम पार्शनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, वीर मंगलम महावीर मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, नमो मंगलम नमोकार मंगलम। आज जोड़िए सब। चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम सौ मंगलम, केवली प्रणत धम्म मंगलम, तारे लोकोत्तमा अरिहंत लोकोत्तमा, सिद्ध लोकोत्तमा सौ लोकोत्तमा, केवली प्रणत धम्म लोकोत्तमा। चत्तारि शरण पवज्यामि, रन शरण पवज्यामि, सिद्ध शरण पवज्यामि, सौ शरण पवज्यामि, केवली प्रणत धम्म शरण पवज्यामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भवे प्राणी करे आराधना, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। ओम ह्रीं नमो ओम ह्रीं नमो ओम ह्रीं नमो ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं नमो। थैंक यू। Thank you so much, Nirmal ji. धन्यवाद आपका। You're welcome. Thank you. Yeah, I think we're going to conclude the meeting. So, So yeah, you Wanna can say log off. Yeah. okay, thank you everybody, and we'll see you on June 28th. That's right, Harshad bhai, you did, and Tejas bhai, very well, very good job, very well done. Oh no, that's fine. I mean, Okay. okay, see you. See you. Bye.